Hello students, how are you all? Welcome to your own channel, that is Yachna Science Classes. So in previous class we discussed about the topic gametogenesis, in which we discussed both topics, that is spermatogenesis and oogenesis. So today we are going to discuss our next topic, that is menstrual cycle. Okay, so this is our next topic according to our NCERT. So we are going to discuss this topic. Hope everything will be clear after this lecture, because some students have many problems in this cycle, that which hormone act at which place and which hormone level is increased, which hormone level is decreased, and sometimes many problems are there. I generally feel this thing that the students have a lot of problem in this topic. So I hope after this lecture, after today's lecture, you will have no difficulty regarding this. So let's start menstrual cycle. Now what is menstrual cycle? It is the reproductive cycle. It is the reproductive cycle in females. ये क्या होता है? रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होता है फीमेल्स के अंदर. एंड विच फीमेल्स? मैमल्स. इट टेक्स प्लेस इन mammals, and out of mammals, not all mammals have this cycle, but only some mammals have this cycle. And which are those mammals? Order है एक mammals के अंदर, that is primata. Primata order is there in class Mammalia, and these primata which include, इनमें कौन कौन से animals आते हैं? It include monkeys, apes and humans. It means जो ये menstrual cycle है, it takes place only these three: monkeys, apes and humans. Okay, and in this menstrual cycle, bleeding occurs through vagina, or we can say vaginal bleeding occurs in female. तो बाकी mammals के अंदर क्या होता है? reproductive cycle क्या उनके अंदर नहीं होता? No, it is not there. उनके अंदर भी reproductive cycle होता है, but they have a different name, that is estrous cycle. Estrous cycle means menstrual cycle takes place in primata order, and estrous cycle takes place in other orders or other animals. So estrous cycle does not have bleeding, इसमें कोई bleeding नहीं होती है, but menstrual cycle include bleeding, उसमें bleeding होती है. And this estrous cycle takes place in like cats, dogs, cows, etc. and other mammals. Okay. So menstrual cycle is the reproductive cycle which takes place in female primates, that is monkey, apes and humans. Okay, next thing about that menstrual cycle, कि ये menstrual cycle होता क्या है और इसमें कौन कौन से events हैं, कौन कौन सी terms हैं. First term is menarche. These terms are very important, you have to learn them. In 1 mark generally question is asked that what is menarche. Menarche means the beginning. It is the beginning of menstruation or menstrual flow. Beginning of menstruation is known as menarche, and when it started at the time of puberty. Beginning of menstruation at time of puberty. प्यूबर्टी के टाइम पे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, एंड उस प्रोसेस को जब ये बिगनिंग होती है, दैट इज नोन एज मेनार्क. एंड व्हाट इज द एज ऑफ प्यूबर्टी? इट इज 12 to 13 ईयर. 12 to 13 ईयर. इट मीन्स मेनार्क स्टार्ट एट द एज ऑफ 12 to 13 ईयर्स. एंड इसके जो मेनार्क के जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड, you can say menstrual cycle का जो period होता है, it is 28 or 29 days. Means in a normal female this cycle repeat every time, and it repeats after 28 or maybe 29 days. However, time vary in every female, like in one female it is 28 days cycle, in another it is 29 days cycle, in another 30 or maybe up to 35. But that is abnormal female in which 35 days it is taking. But if we talk about normal female, then this cycle is of 28 to 29 days. Next thing is menstruation.
Menstruation is actual menstrual cycle, actual menstrual flow when bleeding occurs in female, and it takes place for 3 to 5 days. In some female it is 3, it is 4, or maybe it is 5, means 3 to 5 days in female vaginal bleeding takes place. That process is menstruation. Clear? So menarche is clear, time period is clear, and menstruation is clear. Next thing, it started at the age of puberty during 12 to 13 year age, but when it stops, ये रुकता कब है और उस प्रोसेस का नाम क्या है? लेट्स डू मेनोपॉज. As name is telling, pause means stop. So the stoppage of menstrual cycle or stoppage of menstruation, stoppage of menstrual cycle or menstruation is known as menopause. Okay, बिगनिंग कब हो रही है? प्यूबर्टी के टाइम पे एट 12 to 13 ईयर्स, और स्टॉपिंग कब हो रही है? 50 ईयर की एज पे, एट 50 ईयर्स. बट दिस एज वेरी इन डिफरेंट फीमेल, सब में चेंजेस होते हैं. किसी में 45 ईयर्स है, 48 है, 50 है, मे बी अप टू 55 है. But nowadays, due to lifestyle or due to food habits, this age is going to decrease. ये एज धीरे धीरे कम होती जा रही है. 45, then 40, और maybe it come to up to 35. Okay, so menstrual cycle last from 12 to 13 एज से लेके 50 years की एज तक. If we talk about a normal female, biologically if I say, it means you can calculate fertile period और reproductive period of a female. अगर हम 12 एज प्यूबर्टी के लिए और 50 years हम मेनोपॉज के लिए, तो वो you can calculate कि कितने years तक a female can remain fertile और it can be reproductive. Okay, so now menstrual cycle की definition क्या है? Menstrual cycle. Okay, menstrual cycle is, no, it is the cyclic events. The cyclic events takes place from one menstruation to next menstruation. Cyclic events takes place from one menstruation to next menstruation. One menstruation to next menstruation is known as menstrual cycle. And आगे क्या लिखेंगे? one menstruation to next menstruation, each month. 1 month में या 28 to 29 days में जो साइक्लिक इवेंट्स होते हैं एक मेंस्ट्रुएशन से नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन तक, उन सभी साइक्लिक इवेंट्स को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, सो दीज आर सम टर्म्स विच यू शुड रिमेंबर. नाउ वी विल लर्न कि हाउ बॉडी नोज, कैसे बॉडी को पता चलता है कि नाउ मेंस्ट्रुएशन विल स्टार्ट, एंड कैसे पता चलता है कि नाउ मेंस्ट्रुएशन हैव टू स्टॉप, and at what age they have to be started, at what age they have to be stopped. So let me draw a diagram of a girl. So this girl is there, and we'll discuss then how events takes place. Okay, so this is the girl, and इसके ब्रेन में कुछ चल रहा है. क्या चल रहा है? सपोज दिस इज ब्रेन. ओके, ब्रेन में एक पार्ट होता है, एक ग्लैंड होती है. उस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस ग्लैंड. क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस ग्लैंड. अब क्या होता है, इस हाइपोथैलेमस ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज GnRH. About it we discussed in our previous class also. GnRH means gonadotropin releasing hormone. What it do? It stimulate pituitary. अब pituitary gland भी यही होती है. ये कौन सी ग्लैंड है? पिट्यूटरी. ओके, ये क्या करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं ये हार्मोन. एंड फॉर व्हाट पर्पस दे डू?
दे आस्क पिट्यूटरी दैट यू रिलीज 2 हॉर्मोन्स, ये पिट्यूटरी को बोलते हैं कि तुम ये 2 हार्मोन रिलीज करो, ठीक है। पिट्यूटरी इन दोनों हार्मोन को रिलीज कर देती है। ये काम तो फिनिश हुआ इनका। अब ये कहाँ जाते हैं? यू नो दैट इन फीमेल बॉडी ओवरीज आर प्लेस्ड हियर, यहाँ पे क्या होते हैं? ओवरीज होते हैं, ठीक है। नाउ दिस 2 हार्मोन विल गो टू ओवरी, मैं इन ओवरी को थोड़ा एनलार्ज करके बना देती हूँ। ये हार्मोन कहाँ जाते हैं? ओवरी में जाते हैं। और ओवरी में जाके क्या करते हैं? हेयर फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन ओवरी, फॉलिकल्स आर देयर, वी डिस्कस्ड यस्टरडे, दीज आर फॉलिकल्स, ओके। अब यहाँ पे आके एक्ट करते हैं कौन से हार्मोन? LH एंड FSH। यस्टरडे ऑल्सो वी डिस्कस्ड LH full form is luteinizing hormone. Its full form is luteinizing hormone. Its full form is follicle stimulating hormone. As name is telling कि ये follicle को stimulate करने वाला है, follicle stimulating hormone. These 2 hormone act on follicles. ये follicles पे act करते हैं, उनको grown up कराते हैं, उनको push करते हैं कि grow हो जा, grow हो जा। तो ये फॉलिकल क्या करने लग जाते हैं? प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, ऐसे ग्रो करने लग जाते हैं। अच्छा, वी नो कि इन फॉलिकल्स के अंदर एक बड़ा ही सुंदर स्ट्रक्चर है, बड़ा ही यू नो जैसे ओइस्टर के अंदर पर्ल, मोती मिलता है, ऐसे ही फॉलिकल के अंदर एक पर्ल है। वो पर्ल क्या है? अनडेवलप्ड एग या इमेच्योर एग और ओवम इज देयर। अब ये जब फॉलिकल मैच्योर होंगे, दिस एग ऑल्सो मैच्योर, ये एग भी मैच्योर हो जाता है, ठीक है। वहाँ से एग जो है फिर ओव्यूलेशन हो जाता है, रिलीज हो जाता है। उससे पहले क्या होता है? जब ये LH और FSH फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, उनको डेवलप कर रहे होते हैं, तो क्या होता है? दिस फॉलिकल रिलीज हार्मोन एंड व्हाट आर दैज हार्मोन? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नाउ व्हाट दे डू? यू नो हियर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज देयर, इस तरह से है, हेयर यूट्रस एंड देन सर्विकल और वेजाइना एंड दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। व्हाट हैपन्स? दिस एस्ट्रोजन हार्मोन गोज टू यूट्रस। ये हार्मोन कहाँ जाता है? यूट्रस के पास जाता है और उसकी लाइनिंग को डेवलप करना शुरू कर देता है, एंडोमेट्रियम जो इनर मोस्ट लाइनिंग है, ओके। सो ये सब हार्मोनल कंट्रोल है, ये सब हार्मोन हैं जो क्या करते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, इस सारी प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, ओके। सो व्हेन दिस एस्ट्रोजन इज रिलीज्ड, एंड ये सारा काम कब हो रहा है? इट अकर ड्यूरिंग द एज ऑफ 12 to 13 years विच इज प्यूबर्टी एज। हाउएवर ड्यू टू चेंजिंग लाइफस्टाइल, ड्यू टू चेंजिंग फूड हैबिट्स, दिस एज इज नाउ डिक्रीज्ड। अब क्या होता है? प्यूबर्टी एज बिकम अराउंड 10 to 11 years, बट अकॉर्डिंग टू NCERT वी हैव टू फॉलो दिस एज 12 to 13 year, okay. So around this age these changes takes place in the female body, ये उस फीमेल बॉडी के अंदर चेंजेस सभी हो रहे हैं। तो जैसे ही एस्ट्रोजन रिलीज होता है, सम चेंजेस टेक्स प्लेस इन फीमेल बॉडी, और वो चेंजेस क्या होते हैं? लाइक और वी कैन से इन कॉमन लैंग्वेज दैट दिस फीमेल नाउ कैन बिकम प्रेग्नेंट। However, government has decided the age for that marriage is 18 years, but biologically this female can reproduce. She can become pregnant during this age. But why the age is decided 18? Because फीमेल बॉडी इज नॉट डेवलप प्रॉपरली, वो इतनी मेंटली भी मैच्योर नहीं हुई है और रिप्रोडक्टिवली बॉडी से भी इतनी मैच्योर अभी नहीं हुई है कि वो बेबी को कैरी कर सके। तो कौन कौन से चेंजेस आते हैं व्हेन एस्ट्रोजन इज रिलीज्ड? लाइक ब्रेस्ट आर डेवलप्ड, ओके, ब्रेस्ट आर डेवलप्ड, हिप्स आर डेवलप्ड, breast are developed for feeding milk, hips are developed for what purpose? To carry the baby properly, uterus का size थोड़ा बढ़ जाता है, okay. So these things are happened. What happens? Let me tell you again, listen carefully. Hypothalamus gland से एक hormone release होता है, that is gonadotropin releasing hormone, which stimulate the pituitary gland to release LH and FSH. Now these two hormone goes to ovary to stimulate follicle. Then when follicle got this hormone, जैसे ये इस पे एक्ट करते हैं, follicle release hormone that is estrogen and progesterone. Progesterone का भी रोल नहीं है, that's why I am not telling now. So this estrogen goes to uterus,
For what purpose? To prepare it for the pregnancy or to prepare it for further changes takes place in body. Because they think कि अब एग रिलीज हुआ है तो फर्टिलाइजेशन होगा और प्रेगनेंसी होगी, बट हम उस केस को नहीं पढ़ेंगे आज कि फर्टिलाइजेशन नहीं कराएंगे। आज हम ये कंडीशन पढ़ने वाले हैं, इफ एग डज नॉट गेट फर्टिलाइज तो व्हाट हैपन। ओके, सो टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग कि इफ फर्टिलाइजेशन अकर देन व्हाट हैपन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है। So this estrogen goes to uterus to make some changes in the female body during the age of puberty, that is 12 to 13 years. Okay, अब हम इस साइकिल को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। अभी तो मैंने आपको बताया कि ये सब होता क्यों है, बिकॉज सम हार्मोनल चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी and these hormonal changes are responsible for changes takes place in female body and also they are responsible for menstrual cycle. Okay. So अभी हम menstrual cycle को डिटेल में पढ़ते हैं that क्या क्या इवेंट्स इसके अंदर होते हैं। In NCERT also you can see a table like this. ऐसी एक टेबल तुम NCERT में भी देखोगे, वहाँ भी बनी हुई है, and I'll explain that table and everything will be clear if you try to understand. Okay. So first of all मैंने तुम्हें बताया कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है and it stimulate pituitary to release two hormones. पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। इट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, इट विल सीक्रेट टू हॉर्मोन्स दैट इज LHA एंड FSH. ओके, वेयर दे गो, अब ये कहाँ जाते हैं, ओवरी में जाते हैं, ओवरियन फॉलिकल को हिट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। सो हेयर वी विल राइट ओवरियन फॉलिकल. ओके, व्हेन ओवरियन फॉलिकल बिकम स्टिमुलेटेड they release one hormone that is estrogen and second is progesterone. अब उनको लिख लेते हैं, estrogen and here progesterone. Okay, and these hormone, this estrogen goes to uterus, progesterone also goes to uterus for some changes. तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं यूटेराइन एंडोमेट्रियम, और वो चेंजेस किसके अंदर होते हैं, एंडोमेट्रियम के अंदर होते हैं। येस्टरडे ऑल्सो वी डिस्कस्ड अबाउट दिस थिंग कि एंडोमेट्रियम में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान चेंजेस होते रहते हैं और मायोमेट्रियम में प्रेगनेंसी के दौरान चेंजेस होते रहते हैं। ओके, सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट यूटेराइन एंडोमेट्रियम एंड हियर वी विल राइट द नेम ऑफ पीरियड विच इज गोइंग थ्रू। अब हम यहाँ पे पूरा 29 डेज तक का साइकिल पढ़ने वाले हैं, 29 डेज। सो मैं इसको रफ कर देती हूँ टॉपिक को, सो दैट वी कैन मेक दिस टेबल प्रॉपरली। यू नो कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आई कैन रफ इट। ओके, समझ आया? हियर आई विल राइट द डे। सो हाउ वी विल स्टार्ट दिस साइकिल, सपोज यू नो दैट आई टोल्ड यू दैट मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, जब 3 to 5 डेज ब्लीडिंग हो रही है फीमेल बॉडी में, उस प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ओके, एंड जिस डे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, फ्रॉम दैट डे ओनली वी स्टार्ट द साइकिल, की उसी दिन से वो साइकिल स्टार्ट हो जाता है, उसको हम डेट बोल देते हैं कि वो डेट क्या है। सो सपोज वी कंसिडर द डेट 1, हमने कौन सी डेट कंसिडर की है, 1, तो आई विल राइट हेयर 1 एंड देन 2 3 4 5 इस तरह से, एंड देन 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड मेन डे है हमारा यहाँ पे 14। उसके बाद 15 से लेके और यहाँ 29 और मे बी 28 एंड देन न्यू साइकिल बिगिंस। तो ये डेट हमने लिख ली है। नाउ व्हाट हैपन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट LH एंड FSH। अब ये पिट्यूटरी से सीक्रेट हो गए हैं, तो स्टार्टिंग में LH का लेवल थोड़ा सा कम रहता है,
क्योंकि अभी उसको कोई काम ही नहीं करना है। FSH भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम ही है, बिकॉज इसे भी अभी कोई काम नहीं करना है। बट व्हाट हैपन्स, स्टार्टिंग के 5 डेज, 3 to 5 डेज हैं जब मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो आई कैन मेक हियर दैट यहाँ पे यूट्रस में क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। एंड अप टू व्हाट पीरियड, अप टू 3 to 5 डेज, 3 से 5 दिन तक नॉर्मल फीमेल में ये ब्लीडिंग हो रही है। दिस इज द पीरियड ऑफ 3 to 5 डेज। और इस पीरियड को हम क्या नाम देते हैं, मेंस्ट्रुएशन। व्हाट इज इट्स नेम, मेंस्ट्रुएशन। ओके, सो देयर इज नो वर्क ऑफ LH एंड FSH नाउ, तो इनका लेवल क्या है, कम है। नाउ व्हाट हैपन्स, ब्लीडिंग हो गई है, ओके, उसके बाद क्या होता है, ओवरियन फॉलिकल डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि अब हम डेवलप हो जाएंगे, एग बन जाएगा और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। वो इस भ्रम में है, उस वहम में है, बट एक्चुअल में हम आज फर्टिलाइजेशन नहीं कराने वाले हैं। ओके, वो बेचारा ऐसे ही रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ये ओवरियन फॉलिकल है, इसको हम नाम देंगे प्राइमरी फॉलिकल। इट इज प्राइमरी फॉलिकल। फिर ये डेवलप होता है, ग्रो होता है, तो ये थोड़ा और बड़ा हो जाता है, इसका नाम क्या हो जाता है फिर, सेकेंडरी फॉलिकल। क्या हो जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल। देन इट ग्रोज एंड इट बिकम नाउ टर्शरी फॉलिकल। इसका नाम अब क्या हो जाता है, टर्शरी फॉलिकल। लेकिन ये होता कैसे है, इसका नाम टर्शरी फॉलिकल, बिकॉज एस्ट्रोजन और दिस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH हार्मोन, इनका लेवल क्या होना शुरू हो जाता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, बिकॉज इनको बहुत काम करना है, बहुत काम करना है। क्या काम करना है, दे विल स्टिमुलेट द फॉलिकल टू ग्रो अप, उनको डेवलप करने का ये काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, जब जैसे ये फॉलिकल डेवलप होगा, जैसे टर्शरी फॉलिकल बनेगा, ये काम करने लग जाएगा, क्या, ये एस्ट्रोजन रिलीज करना शुरू कर देगा। क्या रिलीज करना शुरू कर देगा, एस्ट्रोजन सीक्रेट। तो अब हम एस्ट्रोजन को बना लेते हैं। अब पहले तो इसका लेवल कुछ भी नहीं था, अब धीरे धीरे इसका लेवल क्या होना शुरू हो जाता है, ऐसे ऐसे इंक्रीज। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, इसका लेवल ऐसे ऐसे इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया। प्रोजेस्टेरोन में अभी कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं। फिर क्या होता है, ये फेज था मेंस्ट्रुएशन का फेज। उसके बाद एक फेज आता है जिसका नाम है फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिक्यूलर फेज, और इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। व्हाट हैपन नाउ, फॉलिकल ग्रो करते जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, फॉलिक्यूलर फेज। एंडोमेट्रियम की वॉल भी इंक्रीज होती जा रही है, इट्स वॉल ऑल्सो गेट इंक्रीज, ये भी इंक्रीज होती जा रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, एस्ट्रोजन क्या सोचता है कि तेरे पास अभी कुछ काम नहीं है, तू चल यूट्रस के पास। और यहाँ पे वैसे भी यूट्रस थोड़े परेशान था। क्यों परेशान था, क्योंकि यहाँ पे वीपिंग ऑफ यूट्रस हो रहा था, वीपिंग ऑफ यूट्रस, यूट्रस बेचारा रो रहा था। वाई, फॉर इट्स लॉस्ट ऑफ ओवम, ओवम इसका लॉस्ट हो गया था ना, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई थी, तो ये रो रहा था, वीपिंग ऑफ यूट्रस हो रही थी, ब्लीडिंग हो रही थी, इसकी एंडोमेट्रियम ब्रेक हो गई थी, रप्चर हो गई थी। तो एस्ट्रोजन आता है इसको सिंपैथी शो करने के लिए एंडोमेट्रियम के लिए कि चलो अभी कोई काम नहीं, हम क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम की वॉल को इंक्रीज कर देता है और उसको फिर से थिक बनाना शुरू कर देता है। फॉर व्हाट पर्पस, कि अब नहीं तो फिर चलते हैं नेक्स्ट मंथ पे देख लेते हैं, फिर एग रिलीज होगा, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, तो वो फिर से रेडी होने लग जाता है फॉर कैरिंग द बेबी, वो सोचने लगता है कि फर्टिलाइजेशन होगी। तो फिर क्या होता है, ये ग्रेफियन ये जो फॉलिकल्स हैं ये मैच्योर होते जा रहे हैं। टर्शरी फॉलिकल के बाद यहाँ पे बनता है एक बड़ा सा ग्रेफियन फॉलिकल। क्या बन रहा है, ग्रेफियन फॉलिकल, इसका नाम क्या है, ग्रेफियन फॉलिकल। अब जो ये एस्ट्रोजन रिलीज हुआ था, एक लेवल तक तो ये क्या करता है, इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जब इसका ज्यादा लेवल होने लग जाता है, ये जिस हार्मोन ने इसकी हेल्प की थी निकलने में, स्टिमुलेट करने में, कौन से थे वो, LH और FSH, इन्होंने फॉलिकल को स्टिमुलेट किया था, तभी तो फॉलिकल ने एस्ट्रोजन बनाया था ना। अब ये जिसने हेल्प की थी इनको, इसको इंक्रीज होने में, उन्हीं को प्रेशराइज करने लग जाता है। ये पिट्यूटरी के पास जाता है, वो उसकी बुराई कर देता है कि LH और FSH का
जो है प्रोडक्शन ना कम कर दो, बंद कर दो, तो ये LH और FSH फिर से गिरना शुरू हो जाते हैं, फिर से गिरना शुरू हो जाते हैं, इनका लेवल फिर से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, किसकी वजह से, एस्ट्रोजन, इसने गद्दारी की ना इसके साथ, क्यों, क्योंकि पहले तो यही तो इनको बना रहा था एस्ट्रोजन को, LH और FSH, और अब ये क्या कर रहे हैं, ये जाके पिट्यूटरी को ऑर्डर दे रहे हैं कि इनको प्रोडक्शन बंद कर दो। अब इनका प्रोडक्शन कम हो गया है, ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो गए हैं। फिर क्या होता है, ये ग्राफियन फॉलिकल अब ये इस कंडीशन में आ गया है कि ये रप्चर होना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है, और रप्चर होके क्या करेगा, ओवम को रिलीज कर देगा। हेयर ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस, and when ovulation takes place at 14th day of menstrual cycle. Ovulation means release of ovum from the ovary. Release of ovum from the ovary or from the Graafian follicle is known as ovulation. तो ovulation जब होता है तो एस्ट्रोजन जो पहले इंक्रीज हो रहा था, अब ये थोड़ा सा एक लेवल पे आ जाता है, और लेवल पे आएगा जैसे ही अब ये पॉजिटिव फीडबैक देना शुरू कर देता है। कौन, एस्ट्रोजन। क्या पॉजिटिव फीडबैक देगा, सडन इंक्रीज इन LH लेवल एंड सडन इंक्रीज इन FSH लेवल। FSH इंक्रीज हो जाएगा और LH तो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, इसमें तो एकदम तगड़े वाला इंक्रीज आ जाता है, किसके अंदर, LH के अंदर। ओके, जो एस्ट्रोजन पहले इनको डिक्रीज करा रहा था, वही एस्ट्रोजन अब इनको क्या कराता है, सडन इंक्रीज करा देता है। समझ आया। तो इस फेज को हमने फॉलिकुलर प्रोलिफरेटिव फेज क्यों बोला है, बिकॉज फॉलिकल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, दैट्स वाई फॉलिकुलर फेज, एंड एंड्रोमेट्रियम वॉल इज इंक्रीजिंग, वो लिफरेट हो रही है, बढ़ रही है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा, प्रोलिफरेटिव। एनी डाउट इन दिस, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर अप टू हियर। अब आगे चलते हैं। नाउ व्हाट हैपन, 14th डे इज कंसिडर्ड एज द डे ऑफ ओव्यूलेशन। इसको हम मानते हैं कि 14th डे को ओव्यूलेशन होता है। हाउएवर इन सम फीमेल्स द डे कैन वेरी, किसी में 12th डे, किसी में 13 डे, किसी में 14 में भी, किसी में 15 भी हो जाता है। ओके, बट इफ यू टॉक अबाउट नॉर्मल फीमेल देन इट इज द डे 14th डे व्हेन ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस। तो इसका मतलब ये है कि अब फीमेल की बॉडी में ओवम बन चुका है और वो ओवरी से फेलोपियन ट्यूब तक आ जाता है, एम्पुला तक। किस लिए आता है, वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास कि ओवरी से ओवम निकल के फेलोपियन ट्यूब में एम्पुला तक आता है फॉर फर्टिलाइजेशन। वो वेट कर रहा है किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। फिर कहाँ स्पर्म को आना होता है, कहाँ पे, एम्पुला में फर्टिलाइजेशन के लिए, बिकॉज ओवम इज वेटिंग देयर। एंड दिस ओवम, डू यू नो व्हाट इज द लाइफ साइकिल फॉर ओवम, ओवम कितने टाइम तक सर्वाइव करता है। ओवम की जो लाइफ होती है इट इज जस्ट 1 डे 24 आवर्स। अगर वो 24 आवर्स में फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसकी, वो फर्टिलाइज हो जाता है तो इट्स ओके, अदरवाइज इट बिकम डेड, वो मर जाता है। बट स्पर्म की जो लाइफ होती है इट इज 24 to 48 आवर्स और 2 डेज, वो 2 दिन तक सर्वाइव कर जाता है। मान लो ओव्यूलेशन के डे ओवम रिलीज हुआ है एंड उसी दिन स्पर्म वहां पे फीमेल की बॉडी में पहुंच गया है, तो फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस, डेफिनेटली प्रेगनेंसी विल बी देयर। बट इफ ओवम इज रिलीज्ड एंड स्पर्म वहां नहीं पहुंचा है और वो नेक्स्ट डे वहां पे पहुंचता है, तो ओवम ने तो क्या किया, उसने वेट करके, वो तो डेड हो गया ना, वहां पे मर गया, वो तो फिनिश। बट स्पर्म लेट पहुंचा है। बट बाई चांस इफ स्पर्म इज ऑलरेडी देयर इन द फीमेल बॉडी, पहले से ही फीमेल की बॉडी में है और नेक्स्ट डे बाई चांस सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, तो क्या होता है कि ओवम की लाइफ भी है और स्पर्म की लाइफ भी है, तो 2 दिन सर्वाइव कर सकता है ना स्पर्म, तो देन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। बट टुडे वी आर नॉट गोइंग टू मेक देम मीट, उनको मिलाने के लिए नहीं, आज हम उनको मिलाने के लिए नहीं बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन की बात नहीं करेंगे। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उसकी बात चल रही है हमारी, ठीक है। तो ओव्यूलेशन हो गया है, एग रिलीज हो गया है, तो जब एग रिलीज हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, तो ग्राफियन फॉलिकल क्या बन जाता है, एक डीजेनरेट सा कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। व्हाट इट बिकम, कॉर्पस ल्यूटियम। नाउ व्हाट कॉर्पस ल्यूटियम डू, इट रिलीज एन हार्मोन दैट इज प्रोजेस्टेरोन। ये बहुत अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करने लग जाता है। तो जिसके बारे में अभी तक कोई बात नहीं हुई थी प्रोजेस्टेरोन के बारे में, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। पहले इसका लेवल हम स्ट्रेट बनाते चलें।
क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है, इट प्ले रोल इन प्रेगनेंसी। तो ये अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है कि एग रिलीज हो गया है, नाउ प्रेगनेंसी विल टेक्स प्लेस। तो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करना शुरू कर देता है कि अब तेरा काम आ गया है। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल एकदम से यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, किस लिए? क्योंकि क्या सोचा जा रहा है कि प्रेगनेंसी विल बी देयर, फर्टिलाइजेशन विल बी देयर, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, एक और काम हो रहा है साइड में, जो ये एंडोमेट्रियम वॉल थी, इट ऑल्सो थिंक कि बेबी आने वाला है, उसके लिए फूड चाहिए। तो एंडोमेट्रियम बहुत सारी अमाउंट में फूड बनाना शुरू कर देती है, फूड रिलीज करना, सिक्रेट करना शुरू कर देते हैं। और वो कौन सा फूड होता है? ग्लाइकोजन। वो बेबी को भूखा थोड़ा ना रखने वाली है, तो एंडोमेट्रियम अपनी लेयर से ग्लाइकोजन सिक्रेट करना शुरू कर देती है। इसीलिए इस फेज का नाम होता है सिक्रेटरी फेज, बिकॉज सिक्रेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस फ्रॉम एंडोमेट्रियम। और सेकेंड नेम इज ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल नेम बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म्ड हियर। समझ आया? उसके बाद एस्ट्रोजन क्या कर रहा है? अब इसकी बात कर लेते हैं, वो काफी देर हो गया एस्ट्रोजन वेट कर रहा है। तो एस्ट्रोजन का लेवल भी एक इसी तरह उछाल मारता रहता है और फिर डिक्रीज होता रहता है। ओके, नाउ व्हाट LH एंड FSH डू? इनका लेवल भी एक नॉर्मल रह जाता है और ये ऐसे ही डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, इस तरह से इनका लेवल चलता रहता है। किसका? LH और FSH। ऐसा क्यों बोल रही हूं मैं कि इनका लेवल चलता रहता है? बिकॉज अब ये क्या करने वाले हैं, इनकी तो फायदा नहीं हुआ ना, इनको तो क्या फायदा नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, तो दे विल नाउ बिकम रेडी फॉर द नेक्स्ट साइकिल। अब वो नेक्स्ट साइकिल के लिए रेडी हो जाएंगे। एंड एंडोमेट्रियम वॉल भी अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होने की लाइन पे आ जाती है, बिकॉज 28 to 29 डेज आर कंप्लीटेड एंड दे हैव टू स्टार्ट अ न्यू साइकिल, न्यू menstrual cycle for next month. Is it clear? So level of LH and FSH we have done. ओवरियन फॉलिकल में क्या क्या चेंजेस आते हैं ये भी कर लिया है हमने। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कहाँ रोल है और कहाँ इनका लेवल इंक्रीज होता है, कहाँ इनकी पीक डिक्रीज होती है। एंडोमेट्रियम वॉल, यूटेराइन के एंडोमेट्रियम वॉल में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वी हैव डन दिस ऑल्सो। फर्स्टली मेंस्ट्रुएशन फेज होता है जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है 3 to 5 डेज, एंड देन फोलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज होता है व्हेन follicles are formed and proliferative because endometrium wall is going to increase, वो उसमें elongation आ रही है, proliferation आ रही है। थर्ड फेज हमने किया secretory phase, when secretion of glycogen for coming baby food is there, that's why glycogen is there, name is given secretory, and luteal name is given to this phase because corpus luteum is formed। अब corpus luteum के साथ क्या होता है, धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाता है, डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। इसको पता चल गया है कि प्रेगनेंसी तो हुई नहीं और अभी तेरा कोई काम नहीं है, नाउ इट बिकम डीजनरेटेड। तो इसको लिखेंगे डीजनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम, डीजनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम। तो इस मंथ नहीं तो नेक्स्ट मंथ सही। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम व्हाट इट डू, ये नेक्स्ट मंथ के लिए फिर से अपने काम शुरू कर देता है। सारे हार्मोन अब अपना अपना काम नेक्स्ट मंथ के लिए रेडी हो जाते हैं, नेक्स्ट मंथ के लिए प्रिपेयर होने लग जाते हैं, बिकॉज इस मंथ तो अब फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, मे बी नेक्स्ट मंथ इट विल अकर। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके बारे में तुम्हें बहुत ध्यान से समझना है, बिकॉज मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस। सो फर्स्ट मेन टर्म व्हाट यू हैव टू लर्न, मेनार्क। व्हाट इज मेनार्क? द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट द एज ऑफ प्यूबर्टी means 12 to 13 years is known as menarche. Okay, second thing, menstrual cycle, the cyclic events from one menstruation to next menstruation at every month is known as menstrual cycle. Menopause, it is the permanent stoppage of menstruation in a female at the age of normally 50 years is known as menopause. Okay, estrous cycle which takes place in mammals other than primata order is known as estrous cycle. Clear? And then about LH FSH कैसे होता है, पिट्यूटरी से LH FSH दोनों रिलीज होते हैं, दे स्टिमुलेट ओवरियन फॉलिकल, एट ओवरियन फॉलिकल रिलीज एस्ट्रोजन एंड ड्यू टू एस्ट्रोजन यूटेराइन एंडोमेट्रियम चेंजेस टेक्स प्लेस। I hope today's lecture is clear to you. You have understood the things clearly. So
revise it properly, try to understand the things. If you have any doubt, you can ask me in our next class. So tomorrow we will come with our next topic. Up to then, do revise this topic. Thank you.